वुमेन और डायबिटीज के बारे में एक बड़ा मिथ जो आप यहाँ पे ब्रेक करना चाहते हैं? प्लीज गो फॉर रेगुलर टेस्टिंग एटलीस्ट एनुअली. साल में एक बार अपने सारे ब्लड टेस्ट कराइए. आपको कुछ भी नहीं है तो भी कराइए. प्रायोरिटाइज योरसेल्फ. यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. डायबिटीज केयर की एक ऐसी टेक्नोलॉजी टूल जो आप चाहती हैं कि इंडिया की हर वुमेन के पास हो. CGM. And what is CGM? CGM is a continuous glucose monitoring sensors. It's a small device. Because at times हम जब ब्लड शुगर करते हैं पता नहीं चलता है. फास्टिंग एक पैटर्न में आ जाता है, खाने के 2 घंटे बाद एक पैटर्न आ, तो उसी से हम मैनेज कर लेते हैं बिकॉज दैट्स मोस्टली अवेलेबल, ऑलमोस्ट इज एक्सेसिबल. But CGM is a device which is a fantastic tool. It's a small device, we stick it here, it's a small patch. It works for 14 days and it tells you sugar in every 3 to 5 minutes. Hello everyone, welcome in the another episode of Doc Talk powered by Collect Care. And today we have with us a very special guest, Dr. Manisha Gupta ma'am. Ma'am is consultant at Center for Diabetes and Endocrine Kanpur, owner of Dr. Manisha Gupta's clinic Ashoknagar Kanpur, ex-associate consultant in Diabetes and Endocrine Department in Regency Hospital and Madhuraj Hospital Kanpur, national faculty in Type 1 Diabetes Certified Program, Speed Certified, and founder of Empower Group of Type 1 Diabetes India. Welcome on the show, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Lokesh and Connect Care, for giving me this opportunity to interact with you all. And it's really an honor to be here and celebrating the festival vibes. So I'm very excited to look forward with Lokesh, and I hope I will be able to give more insights in terms of diabetes management and rest. Thank you. It's our honor, ma'am, कि दिवाली के just next day मैं आपको host कर रहा हूँ. And you are coming with the same festive vibe, तो ये like it's Collect Care's honor, man. So, man, कैसी रही दिवाली आपकी? Fantastic. I'm always hyper excited with Diwali. Today is the holiday, and after that, it will start again. Oh, I need to go back to work. I need to prepare myself that yes, I have to go to work. So Diwali was fantastic, beautiful, bright, celebrated with full josh. Yes, ma'am. And I think you guys like having this hectic schedule, right? तो उसके अंदर मतलब ऐसे season peak आना, right? That happiness peak होना is just quite excitement. Yes. Cool, ma'am. So I think जो हम topic भी discuss कर रहे हैं, right? ये बहुत like relevant है with the current trends, right? So like before start that topic, right? I just want to know कि मतलब आपकी journey कैसी रही? Like डॉक्टर बनने वाला इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, एंड देन फिर डायबिटीज और एंडोक्राइन जैसी फील्ड को चूज करने का रीजन क्या था, मैम? आई थिंक ये वाला जो पार्ट रहता है ये सबसे एक्साइटिंग होता है, वेयर पीपल शेयर देयर ओन जर्नी. सबका अपना एक जर्नी होता है रोता हुआ सा. Okay, so I started my journey in 2000 and finished my MBBS in 2006. Then fortunately I got married with 2 sons. So I could not do just immediately my studies. So then they were born, and then I started my journey again with more certification, then the higher study, MRCP and SC in diabetes and endocrine from UK. Then, in fact, when they were around some, I think 9 or 11 years, then I had gone to US for my fellowship, and these guys supported me so much. All the one now, so they have grown. They have like, elder one is will be 18 and younger one is 16. So it's exciting. And why this? Because diabetes is very, my dad is diabetic. I have a strong family history of diabetes, probably that. And during when I resumed my work after my kids and all, so I did not know where to start with, because there was so much of gap, approximately around some 5 or 6 years. So I did not know how to pursue further. And then one of my colleague and my senior, she suggested me, you begin with the diabetes management course. So I did a certification. From there, I kept on doing many, and here I am. So it's approximately like prior journey, then a break, and then on. So it's been 10 years now I'm practicing.
ओ मैम लाइक आई थिंक हमारा जो ये पॉडकास्ट है वो भी लाइक रिलेटेड टू दिस ही है कि एज यू मेंशन कि 11 और 13 इयर्स की एज में थे वो जब आप लाइक सर्टिफिकेशन के लिए गए, राइट? सो इट्स बिकम चैलेंज, राइट, कि स्टडीज भी करना है एंड देन एट द सेम टाइम मैंने तो स्कूल भी छोड़ना है, फिर काम भी करना है, फिर रात में बैठ के पढ़ना भी है, फिर मॉर्निंग में काम करना है. मतलब इट वाज now things have settled. Now they have grown. They will start with their own girlfriends and and their own journey. राइट राइट. Okay. आपके एक्सपीरियंस में लाइक एज यू मेंशन कि एक वुमन के लिए हर एक्सपीरियंस एक अलग होता है, राइट? तो आपके एक्सपीरियंस में एक वुमन की डायबिटीज जर्नी कैसे अलग होती है कंपेयर टू एक मैन के साथ में ना? I would say हम इतना विमेन एम्पावरमेंट का बात करते हैं, विमेन विमेन विमेन, स्टिल व्हेन आई ड्राइव, तो अगर मैं कहीं फंस जाती हूँ ना तो भी लोग बोल के जाते हैं मुझसे कि जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो लेके क्यों निकलते हो? आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस माय 10th स्टैंडर्ड. तो कहते हैं हाँ भाई ठीक है, आप ही ठीक हो, यू ड्राइव. बिकॉज इट्स नॉट अबाउट मेल और फीमेल, इट्स अबाउट India is a patriarchal society and it's very tough for people to accept the fact हाँ ठीक है औरतें भी कुछ कर सकती हैं. औरतें हर जगह हैं भाई, they are managing. In fact, women when she goes out to work, it's a double responsibility. It's like they have to manage the household work. It's not about me, it's about all the women, especially the teachers who leave home at 5 o'clock. And so imagine they need to get up by 4. So their body is so much into stress. And when they come to me, they're like, मैडम हम थक जाते हैं हम जब तक वापस आते हैं. तो मैं उनसे कुछ भी नहीं कहती, मैं कहती हूँ ठीक है. मतलब being a women, I think I understand more कि they have to manage like within 24 hours. भगवान जी ने 24 घंटे से ज़्यादा तो किसी को भी नहीं दिए. सो फिर मुझे ये लगता है कि भाई ठीक है, अगर मैं इस जगह होती तो क्या करती. तो मैं उनको आई ट्राई टू गिव देम स्मॉल 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 सोल्यूशंस कि भाई ठीक है, सुबह नहीं चल सकती तो शाम को चल लो, शाम को नहीं होता तो हर 10 मिनट मतलब खाने के बाद 10 मिनट चल लो. सो दिस इज़ व्हाट आई डू. एंड अगर वुमेन के साथ एक अच्छी बात ये होती है, अगर किसी और के लिए करना होगा ना, शी विल बी स्टैंडिंग नेक्स्ट कि भाई ठीक है मैं करके दूंगी. इनफैक्ट यू वुड एग्री कि मम्मा हमेशा रहती है, बट व्हेन इट इज कमिंग टू देयर हेल्थ दे नेग्लेक्ट. कर लेंगे, हो जाएगा, कल कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा, आज ये काम कर लेते हैं, ये ज़रूरी है. सो दे डू नॉट प्रायोरिटाइज एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट. हम बहुत देर तक जब चीज़ों को डिले करते हैं ना, देन इट बिकम्स रियली अ डिवास्टेटेड कंडीशन कि अब क्या नेक्स्ट इज व्हाट. सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट टू ऑल द विमेन, प्लीज कंसीडर योर सेल्फ एज इम्पॉर्टेंट एज मेल. अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखिए, अपने लिए करना सीखिए. सबके लिए करते हैं ना, कभी अपने लिए करके देखो, क्योंकि आप अपने घर की जैसे अन्नपूर्णा मैया हो. अन्नपूर्णा पूरा किचन भी संभालेगी, सब देखेगी, सब कुछ मैनेज करेगी. आपको बजट भी मैनेज करना है, आपका 24/7 जॉब है, ये हमेशा रहेगा, आपको कोई छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है. तो उसमें प्लीज़ मैनेज करिए. डू नॉट नेग्लेक्ट योर सेल्फ. अगर डॉक्टर बोल रहा है कि भाई शुगर मॉनिटर करनी है तो करिए, हफ्ते में एक बार करिए. इसे हस्बैंड के पीछे मत पड़िए कि तुम कर लो, आपकी नहीं हो जाएगी. आपको खुद अपने आप को प्रिक करना है, कोचना है और चेक करना है कि शुगर कितना है. सो दैट्स इम्पॉर्टेंट. सो डू नॉट नेग्लेक्ट. Right, ma'am. And then, so yesterday there was like all the Diwali preps going on, right? So my sister, she is pursuing PhD in physics and वो अपनी thesis भी लिख रही थी. And after that, like she started वो decoration and all. And I was seeing this thing कि यार मैं खुद का जो work करके, and I was feel like oh man, I've done the damn job. And she just at late 2 o'clock तक she written that whole thesis वाला part and all, woke up at 6 having the same excitement and doing such kind of thing. So I think वो woman ही deliver कर सकती है, वो एक man की बस की बात नहीं, not that thing man. यहाँ तो कोई कुछ करता नहीं. एक लाइट भी लगाने बोल दो ना तो कहेंगे ये आर्ट एंड क्राफ्ट मम्मी नहीं होगा. तो मैं खुद ही लैडर पे चढ़ चढ़ के लाइट भी लगाऊंगी, रंगोली भी बनाऊंगी. मैं कहूँगी भाई मैं थक गई हूँ, मैंने रंगोली बना दी, अब दी है, ऐसा करो तुम लोग जला देना. It's like that. Women has come with extra energy, extra efforts they want to put, and they are perfectionists. Trust me. There are few women who are not, but most of them are. Agree ma'am, totally agree. And I think हर घर में ये एग्जाम्पल्स हैं, तो किसी को वो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती. हम तो ऐसे बोलते हैं पुरुष जैसे नहीं हल जोत के आए हैं, बाहर तो बुरे, हमने तो कुछ किया ही नहीं है जैसे.
घर में आके भी we will work, cook and everything. I work from 10:30 to at times 8:30 or 9. And then I come back home, I serve dinner and everything. So it's like non-stop, 24/7 job. And in the morning again, school and everything. I need to go drop them, come back home. Right, man. And I think after this podcast, I feel कि जो वो girls को नहीं होता after a perfect man, तो मैं वैसा बन के निकलूंगा after this podcast. Trying to do this with my sons. कि भाई ठीक है, whenever whomever girl they go with, whomever women they marry, but they need to respect. They need to share the responsibility. Right, man. It's not about the women all the time. राइट मैम एंड देन मैम लाइक सो जैसे हमने डायबिटीज के बारे में डिस्कस किया तो बहुत सी जो वुमेन्स होती हैं राइट वो या तो पहले डायबिटिक होती हैं या आफ्टर प्रेगनेंसी लाइक दे फील कि यार ये डायबिटीज है और प्रेगनेंसी के दौरान भी दैट यू नो दैट वो डायबिटीज होती है तो इन सिचुएशंस में क्या यूनिक चैलेंजेस होते हैं और लाइक इनको कैसे वो मैनेज करें मैम Pregnancy and diabetes is very it's not there's so much of hormonal imbalance. At times they will not eat anything, but because of pregnancy induced hormone, sugars will fluctuate. Sugar as a first 3 months are very crucial because during that time the organogenesis takes place. इसका मतलब बच्चे के ऑर्गन्स बनते हैं पहले 3 महीने में, तो शुगर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. उस समय अगर शुगर बढ़ा रहेगा ना तो बच्चे के ऑर्गन्स डिफॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी होती है. तो कोई भी विमेन जिस प्रेगनेंसी अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ रही है, ओबीज है, हिस्ट्री ऑफ पीसीओडी रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस रहा है, पीरियड्स इरेगुलर रहे हैं ड्यूरिंग देयर एडोलेसेंट और टीनेजर एज, एक्ने और एक्सेस हेयर रहे हैं, प्रायर गेटिंग प्रेग्नेंट they need to test their HbA1c and thyroid. It's mandatory. I see a lot of women, like yesterday when women came with twin pregnancy and she was IVF pregnancy, twins, 3 months pregnant, sugar got checked and she was pre-gestational diabetes. That means she was diabetic prior but she did not check. And now she's come after 3 months. So already little damage would have done, but that can be taken care with the help of ultrasound. If we have 4D, 5D ultrasounds, जो बहुत अच्छे से detect कर लेते हैं if there is any congenital anomaly. So they'll suggest, doctors will suggest. Otherwise, blood these tests which I mentioned, they need to check. Women who are pregnant or planning pregnancy, they need to really keep a blood sugar under control if they are already diabetic. HbA1c should be less than 6.5 and entire pregnancy fasting needs to be less than 90 and खाना खाने के 2 घंटे बाद 120 से कम होना ही है. प्रेगनेंसी में ऐसा है. ये हमारे कोई these are not our standards. We follow American guidelines. So this is ADA recommendation. ADA and IDF, that is International Diabetes Federation. They recommend that this should be the target. If any woman planning pregnancy, they should get their at least random blood sugar. और खाना खाने के 2 घंटे बाद प्लीज चेक करिए. डू नॉट नेग्लेक्ट. नहीं तो बच्चे के ऑर्गन्स पे असर पड़ता है, प्लस बच्चे के फ्यूचर में डायबिटीज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है. उसके ओबेसिटी होने के चांसेस होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि वो मदर के वूम में इतना एक्सपोज्ड हो जाता है शुगर से कि वो शायद डायबिटिक 10 से 12 साल की एज में ही हो जाएगा. So that's I see kids around 13 years, 12 years they are diabetic now. So it is very tough, challenging, but interventions are there. The only intervention is जागरूकता. जागरूक रहिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा. आप किसी भी चीज को नेग्लेक्ट मत करिए. अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढिए. अपने रेगुलर ब्लड टेस्ट कराइए और खुद करिए कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए. Agree में and then I was in some other podcast okay इससे पहले वाले में and then some doctors mentioned कि यार मतलब एक गर्ल थी around 7-8 years old और वो मेरे पास में आई थी and then she was like diabetic at that moment है ना. तो तब मैंने फील किया कि यार इट्स समथिंग कि मतलब ये पूरी जर्नी है राइट. एंड देन फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा उसने मतलब चालू किया उसकी लाइफस्टाइल में चेंजेस और वो ट्रीटमेंट लेना चालू किया. देन आफ्टर सम टाइम्स कि उसकी शादी भी हो गई एंड उन्होंने फिर उसी उसमें मेंशन किया कि जिस सिटी से वो आते हैं वहाँ पे ये
कंडीशन है ये, मतलब मेडिकल कंडीशन ही नहीं है ये, एक जर्नी है, इमोशनल जर्नी है, कि जहाँ पे अगर कोई शादी से पहले लाइक अगर डायबिटिक है तो कई सिटीज में उसको सही भी नहीं ठहराया जाता, राइट? इट्स मतलब उसको एक हेल्थ कंडीशन की तरह नहीं देखते। This is social stigma. इट्स अ सोशल स्टिग्मा। एंड देन सो आपके हिसाब से लाइक डायबिटीज वुमेन की मेंटल हेल्थ, बॉडी इमेज और फैमिली सोसाइटी में उनके ये डायबिटिक होने को कैसे अफेक्ट किया जाता है? मतलब आपने देखे होंगे ऐसे केसेस, राइट? मैं छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ. आई सी किड्स हु आर लाइक 7 year 8 year old, क्योंकि मेरा फेलोशिप टाइप 1 का था जो मैंने यूएस से किया था. टाइप 1 इज अ डिफरेंट कंडीशन. उसमें बच्चा जब डायग्नोज होता है ना, एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस उसको इंसुलिन चालू हो जाती है. 7 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, इनफैक्ट जो सबसे छोटा बच्चा मैंने आज तक देखा है वो 1.5 साल का देखा था जिसको शुगर थी. वो जब भी आता था मेरे पास शुगर 300-400 के साथ ही आता था, क्योंकि वो बच्चा दूध ही पीता था, वो चीनी वाला दूध पी लेता था, बात खत्म हो गई. लेकिन अगर वो भी बच्चा है तो उसको इंसुलिन ही लगेगा. दैट्स द रूल. अब वो छोटे बच्चे when they are diagnosed with diabetes, imagine their journey. They are diagnosed at the age of 6 years से लेते हैं, ठीक है. They go 12 years, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में इंसुलिन स्किप कर देते हैं. क्यों? अगर हम स्कूल में इंसुलिन लगाएंगे तो बाकी बच्चे बात नहीं करेंगे. स्कूल वाले कभी अलाउ नहीं करेंगे, भाई सुई लगा रही है. तो देन दे आर एक्सपोज टू हाई शुगर एंड दैट इन्फेक्ट्स देयर ऑर्गन. फर्स्ट चैलेंज. सेकेंड चैलेंज, वन दे बिकम एडोलेसेंट, देयर प्यूबर्टी हॉर्मोन्स आर कमिंग. मतलब वो जब एक स्टेज होती है व्हेन दे आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम गर्ल टू अ टीनेजर. So imagine that transformation when others are focusing about their looks, their hair, and their skin. These girls are managing their hormonal imbalance. कि भाई वो hormonal imbalance इतना ज़्यादा है and sugar will fluctuate like, periods में वो कभी वो estrogen phase चल रहा है, it will go high, जब progesterone phase चल रहा है, it might go low, and they need to manage that. उनके traits, उनका body image, insulin लगा के they have this there's something called lipohypertrophy, so थोड़े थोड़े swelling हो जाते हैं if they do not rotate their injection site. तो that site rotation plus अगर बॉयफ्रेंड बन गया, if somebody approach, तो उससे भी हाइड करना है, क्योंकि किसी को अब वो इंसुलिन लगाने वाली गर्लफ्रेंड को कौन डेट करेगा जो खाने से पहले कार्ब कैलकुलेट कर रही है और चेक कर रही है कि मैं इतना खाऊंगी तो मुझे इतना यूनिट लगाना है. So that's another challenge. So they will hide. Imagine if they do not manage their insulin there, और वो कोल्ड ड्रिंक भी पी रही है, पिज्जा भी खा रही है, वो उसका शुगर है ऐसे भागता है, घर आके फिर वो करेक्शन कर रही है. दे अवॉइड पार्टीज कि भाई हम पार्टी नहीं जा सकते क्योंकि हमें तो इंसुलिन लगानी है, आज जूस नहीं पी पाएंगे. देन दे एंटर इनटू दिस फेज कॉल्ड मैरिज वाला. दैट्स द टास्क. I know females who got married without even telling the husband कि they are diabetic, and eventually few were very supportive and they accepted somehow, and then they accepted by ठीक है हो गया fine, चलो let's continue, अब तो शादी हो गया. लेकिन कुछ के तो डिवोर्स हो गए, but they end up very bad. I know few, because छुपा के आप कब तक छुपाओगे. और फिर उसके बाद तो I try my best to support in terms of कि भाई ठीक है मैं बाद में डायग्नोज कर देगी, क्योंकि प्रेगनेंसी डिलीवरी शादी के बाद तो प्रेगनेंसी आनी है, प्रेगनेंसी में इंसुलिन लगना है, तो इंसुलिन मैं अभी से स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि तुम्हारा शुगर बड़ा चल रहा है. तो ऐसे एक पेशेंट के साथ हुआ था, उसको इंसुलिन मैंने स्टार्ट किया, उन लोगों ने उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे डाल दिया, वो लड़की एकदम बेहोश होकर आईसीयू में एडमिट हो गई. तो ये बड़ा चैलेंज है. उसके बाद चलो समहाउ शादी हो गया, उसके बाद आती प्रेगनेंसी. द best thing with these girls, when they become pregnant, they conceive naturally. No problem at all. In conception, there is no problem. In fact, I have published data also on this. The women who diagnosed at very early stage of diabetes, type 1 diabetes, and then they conceived naturally, delivered healthy baby, and throughout the pregnancy, the sugar needs to be controlled very well. Still, there are few women who are not getting married, who are not able to find the match. मैं जानती हूँ बहुतों को, and in fact we have there are some community workers who are working in this field. They have opened a group called matrimonial section for type 1 diabetes, where they can interact, come together and share. क्योंकि एक type 1 अगर type 1 से शादी कर लेगा, they'll understand. लेकिन
एक इमेजिन योर गर्लफ्रेंड इंजेक्टिंग 4 times a day, हाउ विल यू फील कि भाई ठीक है इसको तो कैसे मैनेज करना है। और कोई भी नहीं चाहेगा कि वो मतलब घर में वो एक बहू को लेके आए जो 4 बार इंसुलिन लगा रही है। ये हमारे इंडिया का अब तक में माइंडसेट है, अब तक सोशल स्टिग्मा है जो नहीं बदला जा सकता। तो अब ये प्रॉब्लम है, तो अब इसको इसको पता नहीं कैसे डील करना है, एंड दिस लीड्स टू डिप्रेशन, एंजाइटी, लॉट्स ऑफ ट्रबल। मतलब लोग आते भी हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड बना भी लेते हैं, एंड दे डू नॉट एंड अप टुगेदर, एंड दैट लीड्स टू प्रॉब्लम कि भाई ठीक है हम सबको सही चल रहा है, तब शादी की बातें ही तो नहीं करनी है। तो ये भी होता है, तो कॉमन है। तो मतलब ठीक है, तो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें, बस यही कह सकती हूँ कि भाई इन बच्चों के शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है, ये बाहर से ले रहे हैं, हमारे शरीर में बन रहा है, तो हमारे अंदर ही अंदर बन रहा है, बस इतना ही प्रॉब्लम है। And rest, everything is fine. Everything is fine. In fact, very good friend of mine, he is a diabetic. He will carry his insulin almost everywhere. वो जहाँ पे भी जाएंगे ना अपना इंसुलिन अपने साथ ही रखेंगे। He keeps traveling और उनका इंसुलिन उनके घर में। अब तो मेरे बच्चे भी, अंकल अच्छा इंसुलिन लगानी है, ठीक है, तो इंसुलिन हम खुद ही लोड करके दे देते हैं। दे फॉर देम इंसुलिन इज ओके, एनीबडी, बिकॉज माई फादर इज अ डायबिटिक, ही यूज टू टेक इंसुलिन। तो बच्चे तब से ट्रेंड है, जब से 7-8 साल के थे। अब बड़े लोगों को भी देखते हैं, तो फॉर देम इंसुलिन इज अ नेचुरल थिंग, कोई भी लगा सकता है। सो वी एज अ पेरेंट कम फॉरवर्ड, टीच आवर किड्स कि भाई ठीक है, दिस इज अ कॉमन। और अगर कभी कुछ भी कोई भी फ्रेंड ऐसे इंसुलिन लगाती है, हेल्प देम, सपोर्ट देम, so that they do not feel that stigmatized. एक हमारा कैंपेन है, that is something called Inject Anywhere. Inject Anywhere is a global campaign. इसमें कुछ कुछ बच्चे हैं, दे कम अप विद स्मॉल रील्स, जो स्कूल में इंसुलिन लगा रहे हैं, वर्क प्लेस में लगा रहे हैं, पार्टीज में लगा रहे हैं कि भाई ठीक है, ये नेचुरल है, ये कन्वीनियंट है, हमारा बेसिक अधिकार है, ये हम कहीं पे भी इंसुलिन लगा सकते हैं। तो वुमेन के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन पुरुषों के लिए आसान है। पुरुष अगर 4 बार भी इंसुलिन लगा रहा है तो भी उसका शादी हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें भी लोग ना, पुरुष भी छुपा छुपा के इंसुलिन लगाते हैं, हम मम्मी कमरे में रख के वहीं जाके लगाएंगे, फिर आ जाएंगे बेडरूम में। आई नो देम। तो बोलती ठीक है, जब तक छुपा सकते हो तब तक छुपाओ, बट अगर लड़की लगाती है ऐसे और वो तुम्हें बाद में बताती, तो तुम्हें कैसा लगता है? और तुम जो कर रहे हो वो झूठ की बुनियाद पे कर रहे हो, तो फिर एक्सपेक्ट तो लड़की से होता है ना कि वो एक्सेप्ट कर लेगी, लड़के नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो इट इज अबाउट चेंज योर माइंडसेट। भाई ठीक है, जितनी जल्दी एक्सेप्टेंस हो जाएगी उतना बेटर है। गो टू बेस्ट डॉक्टर, कंसल्ट कि भाई अब क्या, नेक्स्ट इज व्हाट। सो वी आर देयर टू हेल्प एनी टाइम। Agree, ma'am. And then, like I saw, like every day I see like my generation as well, right? कि जो थोड़ा 22 से लेके 30 के बीच में, right? They also want these kind of things कि जहाँ पे they feel कि यार I'm ahead of my generation, like X generation. और I think like ये generation अगर ऐसे कुछ steps लेगी, right? कि जहाँ पे acceptability आएगी, like you mentioned your children, right? कि उनके लिए common हो गया, right? So for us, some things are really common कि कोई जा रहा है, किसी को हेल्प कर देना, रोड क्रॉस करा देना, इट्स वेरी सिंपल, राइट? वो जेंडर बायस नहीं करना, इट्स ऑल्सो द थिंग फॉर अस। तो आई थिंक एक जनरेशन अगर पूरा ऐसे चेंज लेके आएगी, तो आई थिंक ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा तो नहीं हो सकती है, राइट? बिकॉज एवरी, मतलब लाइक आई एम फ्रॉम द सिटी बैकग्राउंड, सो आई थिंक वहाँ पे हो सकता है, बट वो जो जैसे उन्होंने मेंशन किया था, जैसे आपने मेंशन किया कि ऐसे भी कई प्लेसेस है जहाँ पे लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं इसको एज ए कि एक हेल्थ कंडीशन की तरह, पता नहीं क्या मेंटल स्टिग्मा लेके बैठा। तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को इतना मैनेज करना, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू है। यस, आई एग्री। सो मैम, आई थिंक मैंने ना मेरी फैमिली में एक और जर्नी देखी है कि जैसे जो लेडीज़ हैं, राइट, उनका वो मेनोपॉज वाला स्टेज आया, राइट? तो वहाँ पे उनके हॉस्पिटल विजिट्स एकदम से इंक्रीज हो गए, राइट? बिकॉज बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे थे ड्यूरिंग दैट फेज, राइट? और आई थिंक और फिर वही सेम एज डॉक्टर एज मेंशन कि जैसे आपने बोला था कि एक बहुत नेचुरल स्टेज आता है, राइट? कि ये जहाँ पे बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, राइट? तो इस फेज में लाइक हाउ यू सी कि डायबिटीज केयर और ये सारी चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, या फिर लाइक कैसे, क्या सीन रहता है मैम इसमें? जैसे जैसे मैंने अभी बताया ना, जब हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, जब
बचपने से एडोलेसेंट में जाते हैं, दैट प्यूबर्टी, तो जैसे ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में आता है वो चेंज कर देता है. इनफैक्ट फॉर मेल ऑल्सो टेस्टोस्टेरोन एंटर्स, सो it the sugar will go haywire. Same thing when they are the body is getting retired, the body is getting from the reproductive age group to perimenopausal or menopausal. तो उसमें first thing is estrogen is going. So when estrogen leaves the body, your adiposity increases, fat बढ़ जाता है शरीर में, वो अपने आप बढ़ता है. उसमें तो फीमेल्स को लगता है पानी भी पी ले तो भी मोटा जाएंगी. इट इज लाइक दैट. तो जब फैट बढ़ता है, तो जब फैट कंटेंट बढ़ता है तो इंसुलिन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है. क्यों बढ़ता है? क्योंकि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत हो जाता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? आपके शरीर में इंसुलिन बन रही है या आप बाहर से ले रहे हो, जब वो इंसुलिन ठीक से काम नहीं करती है, दैट इज नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस. वो शुगर बढ़ा देती है. अगर इंसुलिन ठीक से काम नहीं करेगी तो शुगर बढ़ेगा. तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस में भी बढ़ जाता है. ठीक है. प्लस जब बॉडी रिटायर होती है ना, एस्ट्रोजन जाता है तो इतने हॉट फ्लैशेस होते हैं, बॉडी एकदम गर्म हो रही है, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, इरिटेशन. 40 की एज में, 40-42 में यू कैन एक्सपेक्ट अ लेडी टू गेट मेनोपॉज. उसमें भी दे हैव दिस कि वो अपने आप को फिर ही उसी जोन में कंपेयर करती हैं. पहले तो हम इतना काम कर रहे थे, अब मुझे काम ही नहीं होता है. दे गेट इरिटेटेड. कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, कुछ नहीं होता है. भाई ठीक है. So in that way, just help them, कि I've taught my kids. I clearly tell them when I'm really getting angry, I tell them, see, do not talk to me. My hormonal imbalance is happening. So they're like, okay, मम्मी ठीक है. So they are कि भाई ठीक है, अपने अपने जोन में रहो, फोन चलाते रहो, लेकिन इनसे बात मत करना, बहुत डांटेंगी. So it's like you need to come up. जिस समस्या का समाधान नहीं है उसे छोड़ दीजिए. आपकी बॉडी को रिकवरी चाहिए. योर बॉडी इज डिमांडिंग रेस्ट, टेक रेस्ट. योर बॉडी इज डिमांडिंग कि भाई ठीक है, नहीं हो पा रहा है, मत करो. आप उसके साथ साथ अपनी सारे इन्वायरमेंट की वाइब्स को भी डैमेज करते हो. भाई ठीक है, टेक अ पॉज, काम डाउन, शांत हो जाओ. जिस समस्या का समाधान नहीं उसे छोड़ दो, वहीं पे आगे बढ़ो. लीव दैट प्लेस. आर्ग्यूमेंट इज अबाउट टू हैपन, जस्ट लीव. क्योंकि इस कंडीशन में हम कुछ नहीं कर सकते. मैक्सिमम जिसके बहुत ही अर्ली मेनोपॉज होता है, फॉर दोज लेडीज वी गिव हार्मोनल थेरेपी, दैट इज नोन एज HRT. अदरवाइज 40 के बाद यू कैन एक्सपेक्ट एनी टाइम. तो HRT इज नॉट नीडेड एंड दैट्स अ नेचुरल फेज ऑफ द बॉडी एंड यू हैव टू गो थ्रू. सो व्हाट आई रिकमेंड, टेक न्यूट्रिशियस डाइट. खाने का ध्यान रखो, अपना डाइट अच्छा रखो. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सारी दालें, सारी सब्जियां, ठेले पे बिकने वाले फल खाओ. बड़ी बाजार से खरीद के महंगे फल नहीं खाओ. सीजनल फ्रूट खाओ, सीजनल वेजिटेबल्स खाओ. So this message is for all the women, whether they are living in urban country or rural state, wherever. The process is the same. तो भाई जो मिल रहा है हमारे हिंदुस्तान में मिल रहा है, प्लीज उसे ही कंज्यूम करिए. आप अपने आप इस फेज से बाहर निकल जाओगे. और कुछ लोगों को जब थेरेपी चाहिए होती है ना, so I suggest them, because you can go to a clinical psychologist also. एंजाइटी के बहुत एपिसोड्स हो रहे हैं. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन विजिटिंग अ साइकेट्रिस्ट. हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट को भी बोला जाता है पागल के डॉक्टर थोड़ी है, मैडम पागल के डॉक्टर के पास भेजे दे रही है. अरे भाई, यू नीड द थेरेपी. अगर थोड़े दिन के लिए नींद की दवाई खा लोगे, कुछ नहीं होगा. लाइक आई वुड से, मैं नींद की दवाई पे 5 साल से हूँ. So when I take whenever is needed. Post COVID, my sleep cycle has disturbed. So COVID has impacted that. So it's okay. Take life as it comes. जिंदगी जैसे आ रही है वैसे चिल के साथ जियो, एकदम टनाटन बीतेगी. And prioritize yourself. अपने आप को प्रायोरिटी दो, बस. That is it. And things will be fine. Agree, ma'am. Like, I think it's a great concept जो आपने बताया कि like जो आपने बताया कि whenever like you feel angry, like your children will be like यार मम्मा का hormonal imbalance हो रहा है अभी, let's stay calm, right? Yes. I think ये कितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के इश्यूज, पति पत्नी के इश्यूज को सॉल्व कर सकता है. हाँ, ये कर सकता है. वो लोग ना इसको सोचते, अरे चिल्ला क्यों रही है, शी इज अवॉइडिंग सेक्स. व्हाई? दे नीड टू अंडरस्टैंड शी इज अवॉइडिंग सेक्स. शी माइट सिंपली cuddle, nothing else. Right, She is not in a mood to get a physical intimacy. It's okay, accept. right. लेकिन वो उतना ना बात नहीं करते हैं. They do not communicate.
Right. अच्छे से बात करिए, सारी समस्या का समाधान है, बस ढूंढना होता है। वी कीप रिवॉल्विंग अराउंड द प्रॉब्लम। ये समस्या हुई, इसने कहा, उसने कहा, ये कहा, वो कहा, भाई ठीक है, कह दिया ना, नेक्स्ट इज व्हाट। इतना समस्या है ना, सब लिखो, एक एक समाधान ढूंढते जाओ, सब निकलता है। लेकिन नहीं, दिमाग उस तरफ जाता ही नहीं है। तो लुक फॉर द सोल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम्स। Agree, ma'am. And like I will tell you है ना कि like at my home what happens कि जब भी जैसे मैं मेरी मम्मा को लेके गया like हॉस्पिटल में या फिर कभी उनका कुछ उनको फील हो रहा है ऐसा है just go. So like as doctor suggest कि आपको ना आपकी एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए. So she starts for a whole month एक्सरसाइज कर रहे हैं मॉर्निंग में उठ रहे हैं देन फिर अगेन कुछ आई विल जस्ट मतलब मैं लेके गया एनर्जी टूल कि आप थोड़ा डाइट में चेंज करो स्किप प्रॉपर्टी हाँ हाँ स्टार्ट तो फिर वो एक्सरसाइज से हटके वो डाइट पे शिफ्ट हो जाता है राइट फिर मतलब और कुछ की सेल्फ केयर में आ गया तो वैसे तो हर लाइफ के स्टेज पे राइट चाहे यंग हो मदरहुड हो या फिर मेनोपॉज होता है तो वुमेन को कैसे एक आइडियल लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना चाहिए लाइक कंबाइनिंग दीज थ्री थिंग्स डाइट एक्सरसाइज और सेल्फ केयर देखो, अगर मैं अपना जर्नी स्टार्ट करूँ, आई बिगिन माई जर्नी एट 6:37। Okay. मैं उठती हूँ, आई नीड टू प्रिपेयर लंच and then I go drop my kids, come back home, get ready for the hospital, and so my OPD will begin at 10:30. Okay. 10:30 से मेरा lunch is mandatory कि भाई ठीक है, मेरा breakfast will be light कि हाँ ठीक है, because I need to sit some, I'll have my some breakfast कर ही लेती हूँ कि भाई ठीक है, कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लिए, हो गया। और फ्रूट ब्रेक इज मैंडेटरी, पेशेंट वेट कर लेगा, अपना फ्रूट खाना है तो 2 फल खा लो, ठीक है, 12 बजे 2 फल खा लेती हूँ। 3 o'clock आई विल हैव माई लंच कि उसमें सैलेड भी होगा, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, दाल, चावल, एवरीथिंग विल बी कंबाइंड। लेकिन आई प्रिफर टू हैव 1 कार्बोहाइड्रेट, इधर इज दाल और इस wheat और राइस। सैलेड इज मैंडेटरी, दाल इज मैंडेटरी। तो अपना प्रोटीन बैलेंस करके रखती हूँ। सपोज मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है, पेशेंट्स आर नॉट देयर, सो आई विल वॉक इन माई चेम्बर। तो क्योंकि मेरा वॉकिंग नहीं होता है ना, आई एम अ लेजी पर्सन, तो आई विल नॉट वॉक, नो एक्सरसाइज टू मी। लेकिन कभी व्हेन आई एम मोटिवेटेड, आई हैव द इक्विपमेंट्स, आई स्टार्ट। लेकिन वो नहीं होता है, एट टाइम्स इट्स लाइक अब पीरियड आने वाला है ना, बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग, कल रात में नींद नहीं हुई, सो दिस ऑल विल पाउंस ऑन विमेन, इज वेरी कॉमन। आज काम बहुत है तो नहीं होगा। Then when I am back home, soup is like will begin now, and sauté vegetables is my dinner. That is it. कुछ नहीं खाना है। तो I keep my food light, energy, सारे फल, सारी सब्जी, दालें सब खा लेती हूँ। और अगर नहीं चल पा रही हूँ तो जितनी देर फोन पे हूँ ना, तो उतनी देर में वॉक करती हूँ। So if I will walk inside the house only, keep walking. मतलब मैं सिंपल लाइफ करके ऐसे ही कर लेती हूँ कि भाई ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो कर लो। बॉडी इज ट्रबलिंग सो मच एंड डिमांडिंग एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ बैक पेन, मस्कुलर क्रैम्प्स हो रहे हैं सब। देन आई बिगिन माई एक्सरसाइज रूटीन कि भाई ठीक है, 15 मिनट में अपने बेड पे ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ। So I'll begin. You get this DIYs is there, right? Do it yourself. You get small equipments कि भाई fingers के लिए आ रहे हैं, छोटे छोटे, it's hardly will cost around 200 rupees like that. उससे थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करिए, just strengthening your muscles exercise will work best, because after this menopause and all, muscle will sag. तो हमें लगता है कि हमारा तो चेहरा अब डल होता जा रहा है, हमारे एवरी रिंकल्स आर कमिंग, ऑब्वियसली रिंकल्स विल कम बिकॉज एस्ट्रोजन इज नॉट देयर टू प्रोटेक्ट एनीमोर. So that way you need to care yourself more, you need to give more attention to your body. That's how all the women should do. And नहीं हो रहा है तो अपने डाइट का ध्यान रखो, डाइट में वो सब कुछ खाइए। बस घर में जो आधी रोटी बच जाती ना, तो औरतें क्या करती, अभी आधी कहाँ रखूंगी, ये मैं ही खा लेती हूँ, नॉट डस्टबिन, कम ऑन। कुत्ता खा सकता है वो रोटी, दैट्स ओके, इट्स ओके, एब्सोल्युटली, यू आर नॉट डस्टबिन, डू नॉट ईट, डू नॉट ओवर ईट, इज इम्पॉर्टेंट, यू विल गेन अननेसेसरी वेट। वो आधी आधी रोटी बढ़ते बढ़ते ना बहुत वेट बढ़ा देगी, और स्पेशली हार्मोनल जब इम्बैलेंस हो रहा हो या मेनोपॉज हो रहा हो, यू विल गेन, यू विल ब्लोट अप, सो डू नॉट डू, इट्स नॉट रिकमेंडेड। अपना ध्यान रखिए, बस खूबसूरत बने रहिए, दैट्स इम्पोर्टेंट. Agree. And then the simple thing that you have mentioned, right? I also do
this thing कि जब भी whenever I on call right कि I go छत पे and then I walk और मतलब उनसे बात भी हो जाती है right, you stay connect with your people as well so you can share your own things at nights right and then every day like you जो अपना step count होता है वो भी clear हो जाता है तो basic exercise for me as a lazy person is also that only. दैट्स द बेस्ट थिंग। और सारे फोन में ना आजकल ट्रैकर लगा होता है और सिंपल है, जस्ट डाउनलोड गूगल फिट Okay. और गूगल ट्रैकर, Yeah. सबके फोन में आ जाएगा, बस अपने स्टेप्स काउंट करते जाओ। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग गूगल ट्रैकर, बिकॉज कुछ कुछ ट्रैकर आते हैं जो आप कार में भी फोन रखा है तो वो स्टेप काउंट करते हैं, दैट्स नॉट रिलायबल। तो गूगल वाला ठीक है, मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो ठीक है। तो अपना उससे वॉक करिए, वॉक एंड टॉक इज द बेस्ट थिंग, लीव योर शेयर। Right. हाँ, महिलाएं ऐसे लेट लेट के बतियाएंगी, स्क्रॉल करती रहेंगी, दिस इंस्टाग्राम एंड ऑल, दिस आर नेवर एंडिंग। सो आई वाज रीडिंग, किसी ने कुछ कमेंट किया था कि मेरी मम्मा ऐसे फोन देखती है, ऐसी रील्स देख रही होती है जैसे वो रील्स को बस लास्ट रील तक पहुंच के रहेगी। Right, right. I agree on this. Like, पर स्टिल नहीं आती है। व्हेन आई टेल माय सन कि भाई ठीक है, ये तो खत्म होने वाली, नेवर एंडिंग है ये, तो अपना टाइम वेस्ट करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो। ये कोविड ने बहुत गंदा सिखा दिया फोन, और ये दिस इज नॉट अप्रिशिएटेड, अच्छा नहीं है ये। so with those, I will take inspiration from those rapid fire reels. I will start a rapid fire round, which is like my favorite. So I will ask you some of the questions. Okay, you need to answer that in a one word or a phrase. Okay. So, women और diabetes के बारे में एक बड़ा myth जो आप यहाँ पे break करना चाहते हो. प्लीज गो फॉर रेगुलर टेस्टिंग, एटलीस्ट एनुअली, साल में एक बार अपने सारे ब्लड टेस्ट कराइए। आपको कुछ भी नहीं है तो भी कराइए। प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, यू आर आल्सो इम्पोर्टेंट। Right. Right. डायबिटीज केयर की एक ऐसी टेक्नोलॉजी टूल जो आप चाहती हैं कि इंडिया की हर वुमन के पास वो हो. CGM. And what is CGM? CGM is a continuous glucose monitoring sensors. It's a small device. Because at times हम जब ब्लड शुगर करते हैं ना तो उसमें पता नहीं चलता है, फास्टिंग एक पैटर्न में आ जाता है, खाने के 2 घंटे बाद एक पैटर्न आ जाता है, तो उसी से हम मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज दैट्स मोस्टली अवेलेबल, इज लाइक ऑलमोस्ट is accessible. But CGM is a device which is a fantastic tool. It's a small device. We stick it here. It's a small patch. It works for 14 days. And it tells you sugar in every 3 to 5 minutes. वो 3 से 5 मिनट का ट्रैक करता है। क्यों क्यों चाहती हूँ मैं सबके पास हूँ? क्योंकि उससे आपको पता चलेगा क्या खाने से शुगर बढ़ रहा है, क्या खाने से ठीक रह रहा है। सबकी बॉडी में गेहूं जैसे एब्जॉर्ब हो रहा है वैसे राइस एब्जॉर्ब नहीं होगा। राइस इज नॉट बैड। राइस मतलब मेरी बॉडी इज वेरी हैप्पी विद द राइस। जब मैं वीट खाती हूँ, आई एम प्री डायबिटिक ऑलरेडी, मैं वीट खाती हूँ, साबूदाना खाती हूँ, शुगर ऐसे भागेगा मेरा, बट विद राइस आई एम गुड। कितना ही दाल चावल खा लूँ आई एम गुड, कुछ भी नहीं होता। सो इज एवरीबडी इज डिफरेंट। क्या खाने से शुगर बढ़ रहा है, क्या खाने से बैलेंस है, वो लगाइए, खुद जानिए, वो खाना अवॉइड करिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। तो CGM इज वन डिवाइस आई वुड सजेस्ट, और आई वुड रियली कम, आई वुड dream of that any Indian company come up with the CGM, because we are getting imported from outside, so it is expensive. So हाँ, वो 4,000, 3,500, 3,700 का आता है, 15 दिन के लिए लगेगा, तो वो that is expensive device, not everybody can afford. तो अगर वो इकोनॉमिकल होगा तो लोग लगा सकते हैं 15 दिन के लिए। अगर आप इतना सा चिप लगाए हो तो क्या ही प्रॉब्लम है। So that's- आई थिंक जो आपने ये वाला बात बोला राइट कि बिकॉज एवरीवन्स सो एज ए ह्यूमन बीइंग राइट वी ऑल आर लाइक फैसिनेटेड विद द फैक्ट्स राइट, और आदमी खुद के ही बॉडी के फैक्ट्स को मेजर नहीं कर पाता राइट, एंड टूल्स लाइक दिस राइट कैन गिव यू द इनसाइट्स ऑफ योर ओन बॉडी कि यार तुम्हारा गेहूं के साथ सही बनता है, तुम्हारा राइस के साथ सही नहीं बनता है, या फिर ये वाला फ्रूट तुम्हें सही सॉर्टेड है तुम्हारे लिए राइट. सो आई थिंक दीज इनसाइट्स कैन बी रियली हेल्पफुल एट द टाइम व्हेन आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट, या फिर मेरा बॉडी मेरे को थोड़ा वीक लग रहा है, या फिर मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ. सो आई कैन जस्ट consume those kind of foods that is happy for my body, like
जो एकदम पॉजिटिव है मेरी बॉडी के लिए, एंड देन या आई थिंक आई एम सॉर्टेड. सो इट्स अ ग्रेट टूल मैम, आई थिंक. They should come up with that too. Still, I really want. Made in India हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा होगा. There's still, I know, Mumbai IIT have been working on this, and there's something on insulin pump also. जो जैसे पेन से इंजेक्ट कर रहे हैं 4-4 5-5 बार. पंप इज दिस डिवाइस, इज अ पेजर लाइक डिवाइस जो एक वायर से पाइप से कनेक्टेड होता है थ्रू अ कैनुला, और वो आपके एब्डोमेन में बस ऐसे लग जाता है. ठीक है, पैच जैसे ही होता है. उसका काम होता है बटन दबाया, इंसुलिन उसके थ्रू पहुंच गया आपकी बॉडी में. आपको बार बार इंजेक्ट नहीं करना. वो कैनुला वो आप चिपका सकते हो. 5 दिन तक इज रिकमेंडेड. तो इमेजिन 5 दिन में आपने अपने आप को शायद 15-20 बार प्रिक किया होगा, और उससे वो सिर्फ एक 5 दिन में एक ही बार वो प्रिक जा रहा है. ठीक है, लेकिन अगेन इट इज एक्सपेंसिव. इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर. अप्रोक्सीमेटली अभी दे हैव इंक्रीज्ड द कॉस्ट ऑफ 6,40,000. तो I told them, मैं कहा भाई तुम पैसा बढ़ाते जा रहे हो, हाउ विल आई रिकमेंड दिस टू माई पेशेंट, नहीं ले पाएंगे. एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली द पम्प, इट्स अबाउट द कंज्यूमेबल्स ऑल्सो विच विल कॉस्ट देम अराउंड 20,000 a month. ठीक है, and then like because they have the monopoly, so they are increasing the cost. Now the challenge is, if any Indian company comes up with this can be sorted, because lot of my kids, they want this kind of facility कि भाई ठीक है एक ऐसा इंडियन मेड इंसुलिन पंप आ जाए और एक सेंसर आ जाए ना, उनका काम हो जाएगा. बार बार इंजेक्ट नहीं करना पड़ेगा. स्कूल भी लेके जा सकते हैं, शुगर अच्छा रहेगा, एंड द एंटायर जनरेशन विल बी सॉर्टेड. Right. Agree, totally agree. Like, I think इनोवेशंस आते हैं, बट इनोवेशन से जो इम्पैक्ट होता है वो ज्यादा उन पे होता है जो इनोवेशन प्लस इकोनॉमिक वैल्यू लेके आते हैं, लाइक कंट्रीज लाइक फॉर इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए. Yes. एग्री मैम. सो मैम, एट लास्ट आई थिंक कोई ऐसी पेशेंट स्टोरी जो आज भी याद करके लाइक आपको गूज़बम्स आता हो? कुछ नहीं, एक जो वही वाली जो है ना, जो एक प्रेगनेंसी वाली जो बता रही थी मैं, जो वो उस लड़की ने बचपन से ही उसे देख रही थी. उसने बिना बताए टाइप 1 डायबिटीज, शी वाज डूइंग गुड, बिना बताए शादी कर ली, इंसुलिन बंद कर दिया, वो आईसीयू में एडमिट हो गई. आईसीयू में एडमिट होने के बाद फिर वो मेरे पास आई, उसके हस्बैंड को काउंसिल किया, मदर इन लॉ को काउंसिल किया, सब करते करते फाइनली शी एंड अप हैविंग डिवोर्स. तो दैट्स अ पेनफुल स्टोरी, बट आई स्टिल रिमेंबर द गर्ल कि क्यों लड़कियां पढ़ाई नहीं करती, वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी होती. सो दिस इज माय मैसेज टू एवरी विमेन कि भाई यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडी, कम आउट फ्रॉम दिस रियल वर्ल्ड, इज इट विल लीड यू टू nowhere. You need to be focused, you need to be मतलब ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं तो शादी ही नहीं करते हैं, फिर अपने आप को इतना सुपीरियर समझने लगता है, फिर शादी नहीं होता है. तो कीप अ बैलेंस कि भाई ठीक है, अगर हम पढ़ रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर लेंगे, लेकिन फैमिली भी उतनी इम्पोर्टेंट है, आपके रिलेशंस भी उतने इम्पोर्टेंट है, और आप अपने खुद के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो सब कुछ बैलेंस करके रहिए. मेक द वर्क लाइफ people balance, that's important. Right, ma'am. And I think एक losing thought ना, I am feeling like movie का outro. With the right message, ये जो पूरा picture है इसका end हो गया. So thank you so much, ma'am, for being on this show. Like I really enjoyed the session. And then the second thing would be कि I become a on the path, मतलब जो कैंडी क्रश में नेक्स्ट लेवल नहीं हो जाता, सो ऑन ए परफेक्ट मैन साइड मैं एक लेवल और स्ट्रांग हो गया हूँ. आई विल ट्रीट नाउ like a Shahrukh Khan, like aware Shahrukh Khan kind of sort. So thank you so much. Great. This is a small gesture, small help. In fact, you begin with your family कि गए ठीक है, पानी भी अपने आप ले सकते हैं, ठीक है मम्मा you sit, I will make tea for you. This much help is so much. You know, women will be like overwhelmed कि भाई ठीक है, अरे सूरज कहाँ से निकल आया आज, try doing it today. Yes, Yeah. thank you so much, ma'am. Thank you. Okay, have a great day ahead. Bye bye. Bye-bye.